آج کی مووی ہے موانا جو 2016 میں آئی تھی۔ کی شروعات ہوتی ہے اسٹوری سے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا پوری اوشن تھی کہ اس میں سے لینڈ گاڈ ٹفیٹی نکلی تھی جس نے اپنے ہارٹ جو کہ ایک گرین سٹون ہے اس سے اوشن میں لائف ڈالی تھی، یعنی لینڈز بنائے تھے تاکہ لوگ اپنی زندگی گزار سکیں۔ کچھ لوگ ٹفیٹی کا ہارٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے کیونکہ وہ خود کریچرز بننا چاہتے تھے، مگر وہ سٹون لینے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ تبھی ان میں سے سمندر اور ہوا کا ڈیمی گاڈ اور شیپ شفٹر ماوی نکلتا ہے جو اوشن کے آخر پر موجود ٹفیٹی کے آئلینڈ پر جا کر وہاں سے ہارٹ نکال لیتا ہے، جس سے اوشن میں ڈارکنس پھیلنے لگ جاتی ہے، جسے اگنور کر کے ماوی وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کے سامنے آگ اور زمین کا ڈیمی گاڈ کیکا آتا ہے جو ماوی سے لڑتا ہے تو ماوی کی ہوک جس سے اسے پاورز ملتی ہیں اور سٹون دونوں پانی میں گر کر گم ہو جاتے ہیں۔ پریزنٹ میں متسونوئی ٹرائب کی بڑی عورت تالا بچوں کو بیٹھے یہ سٹوری سناتے بتاتی ہے کہ اس سب کے بعد اوشن میں آہستہ آہستہ ڈارکنس پھیلنے لگ گئی جو ساری زندگیوں کو ختم کر دے گی، لیکن ایک شخص آئے گا جو ماوی کو ڈھونڈ کر اسے ہارٹ آئلینڈ پر رکھنے لے کر جائے گا۔ تالا جن بچوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہے ان میں اس کی گرینڈ ڈاٹر اور چیف ٹوئی اور اس کی بیوی سنا کی بیٹی موانا بھی ہوتی ہے جو بہت شوق سے یہ سٹوری سن رہی ہوتی ہے، اور تبھی ٹوئی اسے لینے آتا ہے لیکن وہ باقی بچوں کے مونسٹرز کی تصویریں دیکھ کر رونے پر ان میں مصروف ہو جاتا ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر موانا سی کی طرف جاتی ہے کیونکہ اسے سی سے بہت پیار ہوتا ہے اور وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی، اور وہ اس کے قریب شیل اٹھانے جاتی ہے تو اسے ایک بیبی ٹرٹل کو برڈز تنگ کرتے دکھتے ہیں، جس پر وہ شیل چھوڑ کر اس کی مدد کرنے جاتی اسے سی تک لے آتی ہے۔ اوشن اس کی اچھائی دیکھ کر اسے شیلز دیتا جاتا ہے اور ساتھ ہی راستہ بھی بناتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے ٹفیٹی کا ہارٹ سٹون بھی دیتا ہے، جسے موانا خوشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو ٹوئی اسے آواز دیتا ہے جس پر اوشن اسے واپس کنارے پر لے آتا ہے، اور ٹوئی وہاں آتا ہے تو وہ اوشن کچھ بھی شو نہیں کرتا اور ٹوئی موانا کو لے جانے اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سٹون سی میں گرتا غائب ہو جاتا ہے۔ ٹوئی موانا کو سنا کے پاس لے کر جاتا ہے تو وہ دونوں اسے سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ کیسے اسے بڑے ہو کر چیف بننا ہے، اس لیے اسے سی کے بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا کیونکہ وہ لینڈ پر رہنے والے چیف سے آگے نہیں جاتے، اور وہی موانا بڑی ہونے لگ جاتی ہے، لیکن اس کا سی کے لیے پیار ختم نہیں ہوتا اور اس کی چیف بننے کی تیاری میں ایک دن ماؤنٹین پہ لے جا کر پتھر دکھاتا ہے کہ ان کی نسل کے پچھلے چیف نے پتھر رکھے تھے اور موانا کو بھی رکھنا ہوگا۔ یہ دیکھ کر موانا اپنے سی کے لیے پیار بھول کر چیف بننے کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا سوچ لیتی ہے، اور ٹوئی اس کے چیف بننے کے قریب پہنچنے پر اسے ذمہ داریاں دینے بھی لگ جاتا ہے، جس کے دوران ہی ایک دن اسے کوکونٹ کے کالے ہونے کا بتایا جاتا ہے، جس کا حل بتا کر موانا آگے بڑھتی ہے تو فشرز اسے اور اس کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ انہیں ریف سے پیچھے ایک بھی فش نہیں ملی۔ یہ سن کر سب پریشان ہوتے ہیں تو موانا مشورہ دیتی ہے کہ وہ ریف سے آگے جا کر فش ڈھونڈ لیں، لیکن ٹوئی سمجھتا ہے کہ ابھی تک اس کا سی کا پیار ختم نہیں ہوا، اس لیے وہ سب کے سامنے اس پر غصہ کر کے چلا جاتا ہے اور موانا بہت غمگین ہو جاتی ہے، جس پر سنا اسے سمجھاتی ہے کہ ٹوئی اس کے ساتھ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ بھی جوانی میں سی سے بہت پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بوٹ پر بیٹھا اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ریف سے آگے گیا تھا، لیکن ویوز کی وجہ سے ان کی بوٹ الٹی ہو گئی تھی، جس پر بیسٹ فرینڈ سی میں ہی رہ گیا تھا، اور ٹوئی موانا کے ساتھ ایسا نہ ہونے کے لیے اسے روکتا رہتا ہے۔ موانا سنا کے جانے کے بعد سوچ میں پڑی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، کیا وہ اپنے دل کو فالو کرے یا پھر وہ چیف بن کر ساری زندگی لینڈ پر گزارے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پتھر رکھنے ماؤنٹین پر بھی جاتی ہے، لیکن اسے وہاں سے سی دکھتی ہے تو وہ قابو نہ پاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے بگ پیٹ پاؤ کے ساتھ بوٹ پر بیٹھی ریف سے آگے نکل جاتی ہے، لیکن وہ ویوز کی وجہ سے لینڈ پر واپس آ جاتی ہے۔ تبھی تالا اس کے پاس آتی ہے اور اس کے فیصلہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے ایک جگہ لے کر جاتی ہے جہاں سے پتھر ہٹا کر موانا کیف میں جاتی ہے تو اسے واٹر فال کے پاس بہت سی بوٹ ملتی ہیں، جس میں سے ایک ڈرم ہوتے ہیں جسے موانا تالا کے کہنے کے مطابق بجاتی ہے تو بوٹ پر ٹارچ سے روشنی آتی ہے اور موانا کو بوٹ پر تصویروں سے اسٹوری دکھاتی ہے۔ اس سے اسے پتا چلتا ہے کہ ان کی پچھلی نسلیں یعنی
एंसेस्टर्स असलन वॉयेजर्स यानी सफर के शौकीन थे जो आइलैंड पर रहने आए थे, लेकिन वो अपने अगले चीफ को बोट पर बिठाकर द्वीप से आगे सफर करने भेजते थे। और ये जानकर मोआना को समझ आता है कि क्यों उसे सी से इतना प्यार था। मोआना बाहर आकर टाला से उनके सफर के रोकने की वजह पूछती है तो टाला उससे मावी का नाम लेती बताती है कि मावी के स्टोन लेने के बाद ओशन सफर के लिए महफूज नहीं रहा था और उनकी बोट्स गायब होने लग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने रीफ से आगे किसी को भी जाने से मना कर दिया था। टाला उसे आइलैंड की साइड पर ले जाकर डार्क शाखें दिखाती बताती है कि उनका आइलैंड भी तबाह होने वाला है, लेकिन इससे पहले मोआना स्टोन लेकर मावी को ढूंढने जाएगी और टाला उसे स्टोन देकर बताती है कि ओशन ने उसे मावी को ढूंढने के लिए चूज किया है। साथ ही उसे स्टार्स से बनी हुक दिखाकर बताती है कि हुक के एंड पर मावी मौजूद है। मोआना ये सब सुनकर स्टोन लिए मीटिंग में जाती है जहाँ ट्री विलेजर्स से मसलों का हल डिस्कस कर रहा होता है और वहाँ मोआना उससे उनके वॉयेजर्स होने का बताती कहती है कि उन्हें ही मावी को ढूंढना होगा, जिस पर ट्री गुस्से में केव को तोड़ने जाता है। जब मोआना उससे रोकती स्टोन दिखाती है तो उसे दूर फेंकता है, जिसे मोआना उठाने जाती है तो उसे टाला की स्टिक मिलती है। मोआना और ट्री को विलेजर टाला की तबीयत खराब होने का बताता है, जिस पर वो दोनों फौरन टाला के पास आते हैं, जहाँ टाला अकेले होकर मोआना को समझाती है कि उसे जाना होगा और उसे स्टोन रखने के लिए अपना नेकलेस देती है। मोआना उसकी मानते हुए स्टोन नेकलेस में रखे सफर के लिए सामान जमा करने जाती है, जिसमें सेना भी उसकी मदद करती है। मोआना बोट में बैठी रीफ से आगे निकलती है तो ओशन उसकी मदद करता जाता है और मोआना को बोट में अपना चिकन पेट हेहे भी मिलता है, जिसके साथ वो दिन रात सफर करते हुक के आखिर में पहुंचने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उसने पहले सी में सफर नहीं किया होता। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। एक रात सफर करते हुए उनकी बोट उल्टी होती है, जिस पर मोआना ओशन से मदद मांग रही होती है कि तूफान आ जाता है, जिसकी जद में मोआना और हेहे भी आ जाते हैं और वो सुबह एक लैंड पर उठते हैं। वहाँ मोआना को रॉक्स पर हुक्स बनी दिखती हैं तो उसे पता चल जाता है कि मावी वही है और वो उसका साया देखने पर अपनी लाइंस तैयार करने लग जाती है, जो उसे टाला ने कहने को कहा था। और मावी उसके पास आता है तो वो उसे लाइंस भी पूरी नहीं करने देता, बल्कि उसे गाना गाने में लगाकर ट्रिक करता केव में बंद कर देता है और उसकी बोट और हेहे को लेकर सी में निकल जाता है, जिस पर मोआना गुस्से में जल्दी से केव से बाहर का रास्ता ढूंढती मावी के पास आती है। मावी उससे बोट दूर करता जाता है तो ओशन खुद मोआना को उसके पास लाता जाता है और जब मावी मोआना के स्टोन से डरता उसे दूर फेंकता है तो ओशन उसे भी वापस ला कर देता है। मोआना समझ जाती है कि मावी स्टोन से डर रहा है क्योंकि वो उसकी वजह से अपनी हुक से हाथ धो बैठा था और उसे बहुत से लोगों से भी मुकाबला करना पड़ा है, जिसका फायदा उठाते मोआना उसे तंग कर रही होती है कि उन पर एरो आकर गिरता है। मावी बताता है कि जिन पायरेट्स की बोट आ रही है वो असल कोकोनट्स क्रिएचर्स हैं जो स्टोन लेना चाहते हैं और वो रस्सी फेंक कर इनकी बोट पर आने लग जाते हैं। मोआना के नेकलेस से स्टोन निकलकर बोट पर गिरता है तो हेहे उसे खा लेता है, जिस पर पायरेट उसे ही उठाकर अपनी बोट पर ले जाते हैं और मोआना मावी को स्टोन लाने के लिए मदद का कहती है तो वो उसकी मानने से इनकार करता बोट दूसरी तरफ मुड़ने लग जाता है, जिस पर मोआना बोट से ओर लिए पायरेट्स की बोट पर जाती है और उन्हें धोखा देती हेहे को पकड़ लेती है और अपनी बोट पर जंप करती है, जहाँ हेहे के अंदर से स्टोन निकल आता है, लेकिन वो पायरेट्स के दोनों बोट्स में फंसे होते हैं। पायरेट्स उन्हें क्रश करने लगते हैं तो मावी जल्दी से उन्हें वहाँ से निकाल लेता है और बाहर निकलने पर वो मोआना की स्टोन पहुँचाने की बात से इनकार करता बताता है कि वो बस अपनी हुक हासिल करना चाहता है ताकि वो अपनी पावर्स ले सके। मोआना उससे बताती है कि वो अब इंसानों के लिए हीरो नहीं रहा, जिस पर मावी बहुत हैरान होता है और मोआना उसे दोबारा हीरो बनने की ऑफर पर राजी करती है कि वो उसके साथ टिफिटी का हाथ वापस पहुंचाएगा, लेकिन पहले उसे अपनी हुक लेनी है, जिसके लिए उसे टामाटुआ के पास जाना होगा और उसकी तरफ जाते हुए रास्ते में ओशन और मोआना साथ मिलकर मावी को गिरा देते हैं ताकि वो मोआना को सेलिंग करना सिखा सके और मोआना सब कुछ सीख रही होती है। अभी उसे टामाटुआ की रहने की जगह पहुंचने का बताता है और पास पहाड़ी के पास लेकर जाता है, जहाँ वो जिक्र करता है कि टामाटुआ के पास हुक होगी क्योंकि वो ट्रायल्स जमा करता है। साथ ही बताता है कि पहाड़ के ऊपर से एंट्रेंस है जिससे वो लाल होता है, जो रेल्म ऑफ मॉन्स्टर्स यानी मॉन्स्टर्स की दुनिया है। ये जानकर मोआना
मोआना डरती है जबकि मावी उसे मॉक करता है तो वो हिम्मत करती उसके साथ पहाड़ पर चढ़ती जाती है और वो दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ से एंट्रेंस से वो अलग अलग जंप करते हैं। मोआना मावी के बाद आती है तो मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे बचते हुए वो टामाटुआ के ट्रेजर्स तक पहुंचते हैं। पीछे ही मावी आता है जो प्लान सोचकर मोआना को टामाटुआ को डिस्ट्रैक्ट करने भेजता है। और जब मोआना टामाटुआ जो कि एक बड़ा क्रैब है जिसके ऊपर ट्रेजर्स पड़े हैं उससे मिलकर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है तो मावी हुक पकड़ लेता है, लेकिन वो अपनी शेप शिफ्टिंग पर अब काबू नहीं रखता होता। टामाटुआ उसे देखता है तो वो मोआना को बोन्स के बीच में कैद करके मावी से लड़ने लग जाता है, जिसका मुकाबला मावी खुद नहीं कर सकता होता। इसीलिए मोआना खुद निकलकर बहुत अक्लमंदी से काम लेती टामाटुआ को स्टोन दिखाती है, जो टामाटुआ मावी को छोड़कर लेने आता है तो वो दूर गिर जाता है और टामाटुआ उसे निकालने लग जाता है, जबकि मोआना मावी और हुक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उनके पीछे से टामाटुआ को पता चलता है कि वो स्टोन नहीं बल्कि पत्थर था, जिसे मोआना ने कलर करके उसे धोखा दिया है। और मावी भी ये जानकर मोआना से बहुत इम्प्रेस होता है और वो दोनों टफीटी के आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। सफर के दौरान मावी अपनी हुक ना इस्तेमाल कर सकने पर गमगीन बैठा होता है तो मोआना उससे उसके टैटूज के बारे में पूछती है, जिस पर पहले तो वो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फिर वो उसकी ये बात सुनकर कि वो दोनों वहाँ अकेले ही हैं, उसे अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। वो बताता है कि वो इंसानों के घर पैदा होने वाला मॉडल था जो अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने उसे सी में फेंक दिया था, जहाँ वो ना जाने कैसे जिंदा होते हुए गॉड्स को मिल गया था, जिन्हें उस पे तरस आया था और उन्होंने उसे हुक दी थी जिससे उसे पावर्स मिली थी और वो फिर से मॉडल्स के पास चला गया था, जहाँ वो उनके लिए सब करता था। उसने ही लैंड्स निकाले थे, ग्रास उगाई थी, उन्हें आग लगा कर दी थी और उनके लिए ही वो स्टोन लेने गया था ताकि वो क्रिएचर्स बना सके, लेकिन आखिर में लोगों ने उसे ही विलन बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। मोआना उसे तसल्ली देती, अपनी गलती की माफी मांगने का कहती है ताकि वो गॉड्स के लिए दोबारा अच्छा हो सके और हुक पर काबू पा सके। और जब मावी ऐसा करता है तो वो वाकई हुक पर काबू पा लेता है और मोआना के साथ मुख्तलिफ जानवरों में शिफ्ट होता जाता है। अपनी हिम्मत वापस मिलने पर वो ठीका से लड़कर स्टोन वापस रखने पर तैयार हो जाता है और वो दोनों टफीटी के आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ वो जाते हुए दोस्त बॉन्ड बना लेते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो आइलैंड के सामने टीका होता है, जिससे मावी ईगल बनकर लड़ने जाता है तो हिट लगने से वो स्टोन और हुक समेत पानी में गिरता है, जो देखकर मोआना उसकी मदद करने जाने लगती है तो मावी पानी से निकलकर बोट पर आता उसे रोकने लग जाता है, जिस पर टीका उस पर हमला करता है, जिससे मावी अपनी हुक आगे कर रोकता है और उसके इम्पैक्ट से बोट दूर चली जाती है। वो दोनों संभलते हैं तो मोआना मावी को गमगीन होते देखकर उसके पास जाती है, जिस पर वो दिखाता है कि उसकी हुक क्रैक हो गई है और वो मोआना पर गुस्सा करता, उसे मॉक करता, वहीं छोड़कर ईगल बना निकल जाता है। मोआना रोते हुए ओशन को स्टोन वापस दे देती है ताकि वो किसी और को चूज कर सके और ओशन वो नीचे ले जाता है। जिसके बाद मोआना रो रही होती है तो उसके पास ताला की रूह आती है, जो उसे अपने दिल को फॉलो करके डिसीजन लेने का कहती है, जिस पर सोच के मोआना ओशन में जंप करती स्टोन निकाल लाती है और प्लान बनाती है कि टीका आग का गॉड होने की वजह से पानी में नहीं आ सकता, इसीलिए उसे उसके लैंड से रास्ता ढूंढकर टफीटी के लैंड जाना होगा। और टीका को ट्रिक करते उसके लैंड के बीच में रास्ता ढूंढती आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब वो टफीटी के लैंड की तरफ बढ़ने लगती है तो उसकी बोट उल्टी हो जाती है, जिसे वो सीधे करने का तरीका ढूंढ रही होती है तो टीका उस पे अटैक करने लगता है, मगर तभी ईगल बना मावी वापस आता है, जिसके इरादे बदल गए होते हैं। मावी बोट सीधी करके मोआना को टफीटी का हार्ट वापस रखने का कहता खुद टीका से शेप शिफ्टिंग करके लड़ने लग जाता है और लड़ाई के दौरान टीका उसे दूर रॉक पर फेंकता है तो उसकी नजर मोआना पर पड़ जाती है, जिस पर वो उसकी तरफ फायर बॉल फेंकता है, जिससे उसे ओशन बचा लेता है। मोआना आइलैंड पर पहुंचकर हार्ट रखने के लिए टफीटी ढूंढने लगती है कि टीका उसे एक और फायर बॉल मारने लगता है, जिससे मावी बचा लेता है, लेकिन उसकी हुक टूट जाती है और मोआना टफीटी के करीब पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ टफीटी सोती नहीं मिलती। मोआना वहाँ इधर उधर देखते हुए टीका पर नजर डालती है तो उसे स्टोन पर बना निशान उसके सीने पर दिखता है,
है, जिससे वो समझ जाती है कि टीका असलन डिफीटी थी, जो हार्ट न होने की वजह से ये बन गई थी। और मोआना आइलैंड से उतरकर ओशन को रास्ता बनाकर डिफीटी को अपने पास लाने का कहती है। और जब ओशन ऐसा करता है तो डिफीटी उसके पास आने लग जाती है। डिफीटी जब उसके पास पहुंचती है तो मोआना उसे तसल्ली देती काम करती है और उसका हार्ट वापस लगा देती है, जिस पर टीका डिफीटी में बदल जाता है। दोनों आइलैंड पर जाते हैं तो ओशन मावी को भी लाता है और डिफीटी मावी के माफी मांगने पर उसे न्यू होप बनाकर दे देती है और मोआना के वापस जाने के लिए बोट बनाकर देती है। फिर खुद सब ठीक करके सो जाती है। मावी मोआना को बोट सही करके देकर उसे बाय करता ईगल बना निकल जाता है और मोआना अपने आइलैंड की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ वो जल्द ही पहुँच जाती है और सब लोग सब ठीक होने और उसके वापस आने पर खुश उसे मिलते हैं। फिर सब साथ मिलकर बोट्स निकालकर रीफ से आगे जाते हैं ताकि दोबारा अपनी रिवायत शुरू कर सकें और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। और मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।